नमस्कार, वाई फैक्टर में आपका बहुत बहुत वापस स्वागत है। होली मुबारक हो। वेलकम टू जिगर ठंडा, सॉरी दैट वाज अ 2014 Tamil film. Welcome to a Dirty Carnival. Oh, that was a 2006 Korean original. Well, you got the gist that of late all movies which are good on content in Indian cinema somehow come from good old Korea. So welcome to मार खाएगा बच्चन पांडे. Well, so directed by Farhad Samji, produced by Sajid Nadirwala, celebrating 70 years of Nadirwala grandson. Seems as if they've endorsed this product, but it has not. Akshay Kumar once again comes in a titular role, made very famous by Bobby Simha in Jigar Thanda. The good part about the film is कि फरहाद समजी and the adapted screenplay credited to Sajid Nadirwala is that they have not deviated from a single scene in the original. So writing ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया है, which is a very good thing because it's when we guys try to emulate, adapt and put our original stuff is when we screw up a good content. So because writing पे ज़्यादा उन्होंने खुद का दिमाग नहीं लगाया है, so the originality of the film stays, which is what hit the right chord with the audiences in 2014, resulting in Jigar Thanda winning 2 National Film Awards. Best Supporting Actor for Bobby Simha, which is the title role of Bachchan Pandey, and Best Editing. Will this film get any Best Editing awards? No, because I think that's where they've gone wrong. Cinematographer remains the same, so he maintains to a very great extent control about the product, where you feel at times Farhad as a director may be losing out. The cinematographer does a brilliant job of capturing the essence. The complete feel of the film has a very nice sepia western tone to it, with a background score by Julius Packham, which is super brilliant. The BGM is rocking. So coming to the liabilities of the film or the mistakes of the film. So I would say poor Arshad Varsi gets a very raw deal. अक्षय हैज़ बीन मैग्नानिमस इनफ टू से कि ये 2 हीरो की पिक्चर है और ऐसी पिक्चरें और करनी चाहिए. अफसोस अरशद वसी इस फिल्म के तीसरे हीरो है. अगर आपने ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी हो तो बॉबी सिम्हा गुंडा है, सिद्धार्थ फ्रॉम रंग दे बसंती एंड नवरसा फेम इज़ द फिल्म डायरेक्टर एंड द थर्ड गाय इज़ द फ्रेंड, द टीचर उरानी. इस फिल्म में अरशद वसी वो तीसरा किरदार है. सिद्धार्थ का रोल निभाया है कृति सैनन ने. द अडेप्टेशन बाय साजिद नाडिरवाला एंड फरहाद समजी के पिक्चर में थोड़ा ग्लैमर आ गया. तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट मुझे ये लगा कि अरशद जैसे पावर हाउस टैलेंट को, जो इसके पास कॉमेडी का इतना भंडार पड़ा है, जिन्होंने मुन्ना भाई के सर्किट को एक जान दे दी थी, एक अलग किस्म की, और गोलमाल सीरीज़ में भी और धमाल में भी और कई सारे पिक्चरों में. अफसोस उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है फिल्म में. मतलब ही स्टिक्स आउट लाइक अ सॉर थंब एंड मीन्स आई कांट स्पीक अबाउट इट, बट क्या है, हम रिव्यू वाले हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक्टरों को अपना वज़न पे ध्यान देना चाहिए. अरशद लिटरली नीड्स टू लूज वेट इफ़ ही वांट्स टू बी सीन. मतलब ही लुक्स लाइक अ पुअर वर्जन ऑफ विवेक अग्निहोत्री, इफ़ यू नोटिस व्हाट आई मीन, विद अ बियर्ड एंड ऑल दैट स्टफ. नहीं जम रहा भाई. Second mistake, or not mistake, weak point is Kriti Sanon. She looks ultra glam, but this is not Tiger Shroff's Hero Panti, where you are supposed to look good. You are supposed to have acted in the film, but she's done, I think, what she's done in Houseful also, and what she's done in other films also. तो कुछ खास नया नहीं है, and she's too glammed up for a place which जो भारत के इंटीरियर्स में दिखाया गया है. They not name any particular state being politically correct, especially after the current elections, but the number plate says it all. उस भारत के इस इन जगहों में to dress up this way would be asking for trouble, especially from the rowdy elements, and she wants to live with them in that atmosphere. So I feel she's a little over the top when it comes of her attire. They could have been a bit more realistic and shown a more boho style. ये 2 गलतियाँ हो गई. तीसरी, द एंटायर जैकलीन एपिसोड वॉज अनरिक्वायर्ड. दे हैड वो इन्होंने डिविएशन किया है. आई थिंक
Akshay just wanted to be nice to Jacqueline because she's working with him on Ram Setu or whatever. बिकॉज उसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल से भी कोई लेना देना नहीं था, इससे उसमें तो था ही नहीं वो एंगल. इसमें खामखा इट फील्स एज इफ इट इज़ फोर्स्ड इन एंड डजंट ऐड ग्रेट वैल्यू. मतलब बच्चन पांडे को आपको उस किरदार को आपको ये बैक स्टोरी देने की ज़रूरत थी ही नहीं. तो दैट्स व्हाई आई फील कि फॉर 2 hour 29 minute फिल्म वो 10-15 मिनट अगर कट जाते तो फिल्म को इजाफा ही होता फिल्म के लिए. Now coming to the good part, Abhimanyu Singh as Pendulum, Kandi and Bafariya Bhaiya Chacha, good old Sanjay Mishra. These three as the sidekicks of Bachchan Pandey store confidence, super brilliant, very good. बहुत समय के बाद अभिमन्यु सिंह को इतना अच्छा काम करते हुए देखा, खुशी होती है. And you see genuine talent being appreciated. Prateek Babbar should stop acting now because he is not being able to differentiate कि वो 4 more shots में कब हैं और कहाँ यहाँ कब हैं. Repetitive same expression वो उनकी वेब सीरीज़ की जैसे ही. And I feel bad for the guy but ठीक है. Akshay Kumar solid from the word go. He lives the character. He has done a completely non-apologetic approach towards it. His look is brilliant. He breathes Bachchan Pandey, the king of Bagua, as they've shown him. और पैसा वसूल. सिंगल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब सीटियाँ बजती हैं कि हाँ ये आया अपना हीरो. ये पिक्चर उस टाइप का है कि आपको हीरो की एंट्री भी जमती है, हीरो का मुक्कालात भी जमता है और हीरो की मुलाकात. He steals the show. He is very good. Poor Seema Biswas for 1.5 scene. I feel bad for her, but ठीक है अभी. पंकज त्रिपाठी इस किरदार उनका जो किरदार है भावेश बोपलू और उनके ये जो कलाकार है वापस से एक बार साबित करते हैं कि सीन राइटिंग के ऊपर डिपेंड है कलाकार का परफॉर्मेंस, रोल के लेंथ के ऊपर नहीं. गिने चुने सीन के लिए कैमियो किया हुआ है लेकिन जिस तरह से वो फिल्म खा जाते हैं पिक्चर में, अगर अक्षय कुमार के बाद कोई देखने लायक है तो वो है पंकज त्रिपाठी. इस बात के लिए फरहाद सामजी और साजिद नाडियाडवाला को फुल मार्क्स कि दे गॉट दिस कास्टिंग राइट. मुकेश छाबड़ा के लिए भी फुल मार्क्स. ऑल इन ऑल बच्चन पांडे होली पे रिलीज़ हुई एक एंटरटेनिंग फिल्म, मास एंटरटेनिंग फिल्म है जिस कारण सर आप पिक्चर देखने जाते हैं. आप पिक्चर में 150 रुपये की टिकट लेके उदास होने नहीं जाते, आप कोई मैसेज सुनने नहीं जाते. उसके लिए आपके पास OTT पे काफ़ी प्रवचन मिल सकता है फ्री में. कोई गड़ी हुई फाइलें खोलने नहीं जाते. तो प्लीज़ जो ये काफ़ी सारे ऐसे बिकाऊ रिव्यूज़ में देख रहा हूँ अपने आप को फिल्मी बुलाते हुए, इंडियन बुलाते हुए, फलाना ढिंगना, इस पिक्चर को खासकर नकारते हुए और इस पिक्चर में जो दूसरी पिक्चरों के लिए उनको पैसे मिले हुए हैं उनका प्रवचन करते हुए ऐसे दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ. अक्षय कुमार हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ फॉर मास एंटरटेनर्स फ्रॉम अ डेकेड प्लस एंड दैट इज़ वाई यू शुड सी दिस फिल्म. पूरे परिवार के साथ जाइए. मनोरंजन का भरपूर भंडार. ऐसा नहीं कि दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, बिकॉज आज के टाइम में दिमाग बहुत लग गया 2 साल में पैंडेमिक में. पिक्चर जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, एंजॉय करो. अगर समय मिला, किस्मत ने साथ दिया तो सिंगल स्क्रीन में देखना भाई और बहनों, क्योंकि मज़ा तब आएगा जब अक्षय के ऊपर सीटी बनती है. Does this movie have the Y factor? Definitely yes. I would give it a 3.5 out of 5. Do like and subscribe to our channel and please follow us on Instagram and Twitter.